की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों की नगरी झांसी शहर, पहुंच और बेतवा नदी के बीच स्थित वो जगह है जहां रग रग में शौर्य, वीरता, अप्रतिम साहस और आत्मसम्मान की चमक और झलक देखने को मिलती है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के अवसर पर झांसी शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। Namaskar. The iconic symbol of valor and courage, Rani Lakshmibai, inspirational to thousands, legendary female role model whose bravery and sacrifice moves across gender, and this is the country she fought to defend. झांसी शहर को विश्व मानचित्र पर एक बेहद खास पहचान दिलाने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की आज 193वीं जयंती है और इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 400 से ज्यादा साल पुराने झांसी के किले की प्राचीर पर एक विशेष समारोह में वीरता और साहस की पर्याय रानी लक्ष्मीबाई को राष्ट्र की ओर से नमन करेंगे। This beautifully lit up 400-year-old fortress. Today is the birth anniversary of Rani Lakshmibai, the queen who gave strength and sacrifice new meaning. And what better way to pay tribute to her than foregrounding the role of women as equal partners in defense security as India moves forward to a modern future, opening doors for gender equality of opportunity. In a short while from now, the Prime Minister will arrive here to witness the retreat ceremony at this historic fort and pay tribute to Rani Lakshmibai. झांसी को पहले बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में झांसी के नाम से मशहूर इस शहर में बंगरा नामक एक चट्टानी पहाड़ी पर ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा ये ऐतिहासिक किला निर्मित किया गया था। किले में 10 दरवाजे या फाटक हैं जिनमें खंडेराव गेट, दतिया दरवाजा, उन्नाव गेट, झरना गेट, सागर गेट, ओरछा गेट और चांद गेट इत्यादि शामिल हैं। This is a beautiful view of the city and located atop the rocky and strategic Bangra Hills. We have the Jhansi Fort. When we see the physical remnants of history, the many stories associated with the past, stories of men and women who played important roles in helping to create the present that we live today. India's freedom struggle has been a long and checkered one, but helping us look back, recognizing that which we never saw, but the fruits of which we enjoy today, historical monuments definitely give perspective to the present. ग्रेनाइट से बनी किले की दीवारें 16 से 20 फीट ऊंची हैं और दक्षिण में यह शहर की दीवारों से भी मिलती हैं। This is the interior of the fort. And though many stories and sacrifices may have been unsung and are likely to be clouded by anonymity, stories like the Rani of Jhansi become important vehicles for carrying our respect and reverence
to all those brave hearts who sacrificed for the country. वर्षों पहले महिला सशक्तिकरण का अलख जगाने वाली रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में देश के पहले स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी और इस किले की प्राचीर से अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने छलांग लगाकर स्वयं को ब्रिटिश सेना की पकड़ से दूर रखा था। So this is the top area of the ramparts, where when the retreat is sounded, the flag आज इसी किले में स्थित पावन कुदान स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रस्तर पर उकेरी गई वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित मूर्तिका और उसी के नजदीक स्थित पट्टिका का अनावरण करेंगे। the three buglers who will sound the retreat on the arrival of the Prime Minister as he comes to witness the retreat ceremony here. This is the top part of the ramparts. And today, as youth are challenging what has been status quo for a long time, and the socio-economic scenario is undergoing rapid changes, women entering the arena of national defense in newer areas is an important step. These are 33 young girls who've just got admission into Sainik schools. And this is the carcade of the Prime Minister going up to the ramparts. कुछ ही समय के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक झांसी के किले की प्राचीर पर आगमन होगा। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक नाम ही नहीं बल्कि भारत की नारी शक्ति की पहचान भी है। उन्होंने अपने बलिदान और शौर्य के जरिए गुलामी की जंजीरों में जकड़े देश के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा किया था। आज सारा राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है उनकी जयंती के अवसर पर। The theme as we celebrate valor and courage symbolized by Jhansi Ki Rani on her birth anniversary today is about foregrounding and celebrating with us the Indian Air Force with their fighter planes in a flight display going across the ramparts as the President's carcade makes its way up to the ramparts. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय के उपरांत प्राचीर पर पहुंच रहे हैं और ये आसमान में वायु विचरण करते हुए वायु योद्धा 3 Su-30, 3 MiG-29 और उनके पहले सूर्य किरण The roar across the sky as the jets go past with respect and reverence coincides with the Prime Minister's arrival here at the Jhansi Fort. झांसी किले की प्राचीर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन। प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के द्वारा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी।
When the retreat will be sounded, the command will be given, and slowly, with respect and reverence, the national flag will be lowered and kept for safekeeping when the Prime Minister reaches the base. (1857) में देश की आजादी की पहली लड़ाई झांसी की धरती से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में लड़ी गई और आज माननीय प्रधानमंत्री ऐतिहासिक झांसी किले की प्राचीर से राष्ट्र के तरफ से उन्हें नमन करेंगे. Earlier, in the latter part of the afternoon, we had slight showers over here in Jhansi, and the whole place pristine and washed. ऐतिहासिक झांसी किले की प्राचीर पर राष्ट्र की ओर से वीरांगना लक्ष्मीबाई को नमन करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय पट्टिका के अनावरण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और राष्ट्र ध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतारा और सहेजा जा रहा है. The Prime Minister moving towards where he will unveil a sculpture of Rani Lakshmibai and will be presented with a sword as a symbol of the honor and valor that women have exhibited. This is a 5 foot by 7.5 foot sculpture, sandstone on top and granite at the bottom. माननीय प्रधानमंत्री महोदय एनसीसी की बालिकाओं की 33 बालिकाओं की एक जो टुकड़ी है उसकी एक सदस्य से त्याग, बलिदान, शौर्य और साहस के प्रतीक तलवार ग्रहण कर रहे हैं. भारत के उज्जवल भविष्य का परिचायक एनसीसी में बालिकाओं की उपस्थिति 33 अलग-अलग जिलों से ये बालिकाएं कैडेट यहां पर पहुंची हैं. It's a proud moment for all these young girls and also for the Prime Minister. बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. राष्ट्र का नमन वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को.
Prime Minister, after witnessing the retreat ceremony on the ramparts of the fort, now makes his way towards the main venue where the event will further take place. It's a cloudy day here, as we shared earlier with you, so we can't see the coppery hues of a setting sun. But man-made light, beautifully positioned, artistically done, lighting up the fort in all its glory. झांसी के ऐतिहासिक किले की प्राचीर से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजन स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहां वे रक्षा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में देश के विकास को परिलक्षित करती हुई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। And as we foreground and celebrate the role that every citizen, irrespective of gender, plays in dedicating and submitting of themselves to defend the nation, we also celebrate the increasing opportunities being given to women. Today, the nature of threats, those that may cause harm to the fundamentals of any nation, has expanded way beyond to just a threat to its boundaries. And that's why it's important that each one of us in our own way foreground India's safety and security. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है और उसी की एक झलक आज ऐतिहासिक झांसी के किले की पृष्ठभूमि में निचले भाग में स्थित मुख्य आयोजन स्थल पर देखने को मिलेगी, जहां पर न केवल देश में निर्मित रक्षा उपकरणों को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, बल्कि आने वाले दिनों में ये भी संभावनाएं बन रही हैं कि भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात करने की स्थिति में भी पहुंच सकता है। And when we talk of Atmanirbhar Bharat, we know that we cannot be independent truly till the women in our country are brought forward in all the avenues to achieve, to be successful. Women and the important roles they play in ensuring that the fabric of the nation stays strong is well recognized. In present times, with different Supreme Court rulings and government policies, the opening up of different arms of the uniformed service for women, Sainik schools taking in girls for military training and education, and social and parental mindsets being more accepting and open about women in uniform, we celebrate women's contribution and achievements in defending the nation. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला संतुलित रफ्तार में मुख्य आयोजन स्थल की ओर अग्रसर, ऐतिहासिक झांसी के किले से नीचे की ओर मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ 15 अगस्त 2020 को यानी पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में एनसीसी के सीमांत और तटीय क्षेत्रों में विस्तार की बात कही थी। आज रानी लक्ष्मीबाई के 193वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष समारोह में 100 नए को एजुकेशनल सैनिक स्कूल्स बनाने की भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय आधिकारिक घोषणा करेंगे। ये सभी स्कूल अगले 2 वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित किए जाएंगे। – 16 specially placed cameras by Doordarshan.
to give you the best views, the best shots. 16 cameras, our expert cameraman positioned. And as the Prime Minister's carcade makes its way to the main venue, which is here, right at the foot of the hill on which the fort of Jhansi is situated. This is where everybody has gathered. The Prime Minister will be coming here, will address the gathering, will inaugurate many more schemes, all helping us become more self-reliant. And the whole area lit up. When we look back at 1888, when the Indian Military Nursing Service was formed, commencing the role of women in the Indian Armed Forces, to today, the year 2021, we find that exposure, reach and participation of the women has increased so dramatically. And as if everything here is celebrating that participation. राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के समारोह के तहत किया गया है। 3 दिवसीय ये समारोह जो कि आज अपनी परिणति पर पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक झांसी शहर में आगमन हुआ है और अब से कुछ देर पहले उन्होंने झांसी किले की प्राचीर पर राष्ट्र की ओर से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन किया और अब उनका आगमन हो रहा है मुख्य आयोजन स्थल पर। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे अपने देश के प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर पधार चुके हैं। मंच पर आसीन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, भारत के आदरणीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, एमएसएमई राज्य मंत्री आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, हमारी इसी झांसी का बतौर सांसद प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय श्री अनुराग शर्मा जी और इस समारोह में पधारे सभी देवियों और सज्जनों का मैं शम्मी नारंग अपनी सहयोगी होस्ट गीतिका गंजू के साथ आप सभी का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वह अभिनंदन स्वरूप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सुंदर चित्र भेंट करें। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि हार्दिक अभिवादन स्वरूप हमारे सबके प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी को एक उतना ही खूबसूरत ब्रास स्टैचू भेंट करें। देवियों और सज्जनों, आप सबको सादर प्रणाम। झांसी की ऐतिहासिक धरती पर मैं गीतिका गंजू आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज का ये दिन इस धरती की मिट्टी की तरह ऐतिहासिक है। आज के दिन हम सभी भारतवासी आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक कदम उठाने जा रहे हैं। निश्चय है कि आने वाला भविष्य यशस्वी होगा।
आज ये हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है कि हमारे बीच भारत के प्रथम और वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी मौजूद हैं। पूरी विनम्रता के साथ आप जैसे सक्षम और कुशल सर्वोच्च सैन्य अधिकारी से मैं निवेदन करूंगी कि आप स्वागत भाषण दें। सम्माननीय जनरल बिपिन रावत जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पाटिल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमएसएमई श्री अनुराग शर्मा, सांसद झांसी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल चौधरी, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, उप सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, मीडिया कर्मी, शुभ संध्या। भारतवर्ष की बुंदेलखंड की इस भूमि पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विशेष पहचान दिलाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ रक्षा मंत्रालय ने रानी के अदम्य साहस और वीरता को नमन करते हुए बुंदेलों का ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों में एकता और अखंडता की भावना उजागर कर दी है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हर देशवासी और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में देश सर्वप्रथम के अटल इरादों से अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, उन सभी को सम्मानित करने की पहल बहुत ही सराहनीय है। रानी की गाथाओं का वर्णन समय मांगता है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ पंक्तियों में मैं वर्णन करना चाहूंगा। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, वो तो झांसी की रानी थी। अपने घोड़े पर सवार दारो दांतों बीच लगाम संभाले, तलवार से वार करते अंग्रेजों पर लगातार वार करते हुए साहस और बलिदान का अचंभित करने वाला नजारा इतिहास के पन्नों में रचा है। पीठ पर बंधे उनका नन्हा पुत्र दामोदर रानी की वीरता, साहस और बलिदान को इतिहास के पन्नों में समाता देखता रह गया। महारानी की प्रेरणा से नारी शक्ति का साहस आज की नारी में प्रतीक हो रहा है। आज का ऐतिहासिक पर्व देश सर्वप्रथम यानी नेशन फर्स्ट और तिरंगा का सम्मान करना हम सभी को महत्वपूर्ण संदेश देता है। आगे की प्रक्रिया इस दिवस की महत्ता आप सभी को याद दिलाएगी। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रावत आपके प्रेरणात्मक संबोधन के लिए। देवियों सज्जनों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है एक फिल्म जो आईना है देश में एनसीसी की बहुमूल्य भूमिका और सैनिक स्कूलों में हाल ही में शुरू हुए बालिकाओं के प्रवेश से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री जी की अतुलनीय परिकल्पना का। तो आइए देखते हैं मोदी जी की इस बेमिसाल सोच पर आधारित इस फिल्म को। सैनिक स्कूल भारतीय सेना और देश के शौर्य की प्राण शक्ति है। सैनिक स्कूल
मजबूत और बौद्धिक क्षमता के श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा कर एक नई क्रांति का आह्वान किया है। अब हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश में नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। डे स्कॉलर्स को भी दाखिला मिलेगा। 50% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। हर सैनिक स्कूल एक खेल में दक्ष बनाया जाएगा। निजी संस्थाओं और एनजीओ के साथ मिलकर सरकार सिर्फ 100 नए सैनिक स्कूल ही नहीं बनाएगी, बल्कि सारे देश में राष्ट्र प्रेम की एक नई ज्वाला प्रज्वलित करेगी। ये सारे ऐतिहासिक बदलाव सिर्फ अगले 2 साल में ही पूर्ण किए जाएंगे। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई, माता भाग कौर और खिलाड़ी चेन्नम्मा जैसी वीरांगनाओं से प्रेरणा लेती आज की सशक्त लड़कियों के लिए भी अब सैनिक स्कूलों में प्रवेश के द्वार खुल गए। अब हमारे देश की लड़कियां भी बालकों के संग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। ये कदम लड़कियों को न केवल नई शिक्षा, नया दृष्टिकोण, नई ऊर्जा देगा, बल्कि उनके लिए नई राहें भी खुलेंगी। ये कदम लड़कियों को भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने में सहायक सिद्ध होगा। एनसीसी, अनुशासन की पहचान, देश की शान, दुनिया में सबसे बड़ा गौरवपूर्ण यूनिफॉर्म्ड युवा संगठन एनसीसी अब और सक्रिय, सुदृढ़ और साहसी बनेगा। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की है। एनसीसी की ट्रेनिंग, उसकी क्षमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है। अब सभी एनसीसी कैडेट्स को पहली बार सिमुलेटर द्वारा आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए फायरिंग सिमुलेटर की संख्या 1 से बढ़ाकर 98, रोइंग सिमुलेटर 10 से बढ़ाकर 71, फ्लाइंग सिमुलेटर 6 से बढ़ाकर 50 कर दिए गए हैं। अब सिमुलेटर पर आधुनिक प्रशिक्षण पाकर हमारे एनसीसी कैडेट्स देश के लिए शूरवीर जाबाज योद्धा बनेंगे। जब ये फोर्सेस में शामिल होंगे तो ये प्रशिक्षित कैडेट्स भारतीय सैन्य बल को और प्रबल करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश के समस्त सीमावर्ती क्षेत्रों के समीप मुख्य तालुकों के हजारों स्कूलों में एनसीसी की यूनिट स्थापित करने का फैसला करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया। देश के बॉर्डर के निकट बसे बच्चों में इस कदम से देश प्रेम की नई ज्वाला जगी है। एनसीसी कैडेट्स अब सीमाओं के प्रहरी के रूप में उभर रहे हैं और हमारी सीमाओं के सुरक्षा बल को एक युवा सैन्य कवच प्रदान कर रहे हैं। हर एनसीसी कैडेट एनसीसी से आजीवन जुड़ा रहना चाहता है। वंस एन एनसीसी कैडेट, ऑलवेज एन एनसीसी कैडेट। माननीय प्रधानमंत्री, जो खुद भी एक पूर्व एनसीसी कैडेट हैं, आज एनसीसी अलुमनाई एसोसिएशन का लॉन्च कर रहे हैं। अब पूर्व एनसीसी कैडेट्स को फिर एनसीसी से जुड़ने के द्वार खुल जाएंगे और देश को नए परिपक्व मार्गदर्शक और मेंटर्स मिलेंगे। आने वाले समय में भारत को और भी शक्तिशाली बनाएगी, ये आने वाला समय सिद्ध करेगा। हम झांसी में हैं और अब जिन 2 वीर बालिकाओं को मैं मंच पे आमंत्रित करने वाली हूं, इस वजह से इतना बनता है कि मैं आप सबके समक्ष इस प्रसिद्ध कविता की 4 पंक्तियां रखूं। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ही एक भारत की वीर पुत्री को अब मैं मंच पे आमंत्रित करने जा रही हूं, कैडेट अवनीत कौर, जो अब सिम्युलेटर उद्घाटन समारोह का संचालन करेंगी। प्लीज वेलकम कैडेट अवनीत कौर।
राष्ट्रीय कैडेट कोर संगठन विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन है। एनसीसी की सभी यूनिटें सशस्त्र बल में युवाओं को करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। प्रधानमंत्री रैली 2021 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिम्युलेटर्स को भारी संख्या में बढ़ाया था, जिसमें फायरिंग सिम्युलेटर्स को 1 से 98, रोइंग सिम्युलेटर्स को 10 से 71 एवं माइक्रोलाइट सिम्युलेटर्स को 6 से 50 कर दिया गया। इससे एनसीसी प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा बेहतर परिणाम पाए जा सकेंगे। इसके लिए हम सभी कैडेट्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी से इन सिम्युलेटर्स का उद्घाटन करवाकर हमें गौरवान्वित करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब मैं भारत की एक और वीर पुत्री को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी, सीनियर अंडर ऑफिसर निदा खान, जो अब एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन स्थापना समारोह का संचालन करेंगी। सीनियर अंडर ऑफिसर निदा खान। हम सभी के लिए यह बहुत गौरव की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि खुद एक पूर्व एनसीसी कैडेट हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। एनसीसी और एनसीसी कैडेटों के प्रति उनके मन में हमेशा से एक विशेष प्रेम रहा है। इसके लिए मैं सभी एनसीसी कैडेटों की तरफ से उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज इस वीर और ऐतिहासिक भूमि पर हम एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी से कराएंगे। एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन भारत सरकार एवं एनसीसी के महानिदेशालय के संयुक्त प्रयासों का एक बेहतरीन परिणाम है। इसका उद्देश्य पूर्व एनसीसी कैडेटों एवं वर्तमान एनसीसी को एक मंच पर लाकर राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना है। ऐसा करने से पूर्व एनसीसी कैडेटों के कौशल विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब मैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया मंच पर आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी से एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन का आईपैड पर बटन दबाकर उनका प्रथम नामांकन दर्ज करें। के महानिदेशक से आग्रह करती हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रथम सदस्यता कार्ड का एक सांकेतिक प्रारूप भेंट करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवी और सज्जनों, अब रक्षा मंत्रालय की विभिन्न उपलब्धियों और अभूतपूर्व कार्यों से संबंधित कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच पर एक बार फिर से आमंत्रित कर रहा हूं कर्नल राजेश जिंदल जी को। जय हिंद श्रीमान। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोलीसा शोभित हिंदुस्तान हमारा। भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल जी के ये अमर शब्द, कवि इकबाल का वो जय घोष, जी हां सही समझे आप लोग, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारे जहां से अच्छे हिंदुस्तान की गौरव गाथा बयां करने के साथ साथ ये उद्गार, ये शब्द भारतीय सेनाओं के स्वर्णिम इतिहास को भी खुद में समेटे हैं। देवी और सज्जनों, इतिहास सैनिकों के शौर्य का, स्वाभिमान का
राष्ट्र प्रेम और बलिदान का। इन्हीं सैनिकों को आत्मनिर्भरता के माध्यम से एक और सशक्त बनाए जाने के लिए कीर्तिमान स्थापित करता हमारा देश। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम की हमारी भारतीय संस्कृति, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वदेशो भुवन त्रयम का संदेश भी खुद में समाहित की है। वो परंपराएं जो हमें सिखाती हैं कि अपना देश ही तीनों लोकों में श्रेष्ठ है और इस देश को मजबूत बनाना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के अनुरूप दुनिया की सेवा कर पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण के इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए देश अग्रसर है आत्मनिर्भरता के नए शिखर की ओर। विज्ञान से अनुसंधान तक, किसान के आत्मसम्मान से सैनिक के स्वाभिमान तक, नए भारत के इसी रूप को प्रतिबिंबित करती, इन्हीं भावनाओं को गुंजित करती भारतीय सेनाओं को समर्पित यह लघु फिल्म। प्लीज सिट बैक एंड एंजॉय। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये शब्द आज भी हर भारतवासी के दिल में देशभक्ति का जज्बा भर देते हैं और हम सबको आजादी के उस दौर की याद दिलाते हैं जब झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस से अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। तब से भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ झांसी का भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उसी झांसी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में इस बार रक्षा क्षेत्र में नई पहचान मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक 4000 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों में जैसे 1000 से भी अधिक स्टार्टअप नई टेक्नोलॉजीज को साकार कर रहे हैं और उनसे ड्रोन्स, एंटी टैंक मिसाइल्स आदि खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो आइटम पहले इंपोर्ट होते थे, अब जब देश में ही बनने लगे हैं तो उनकी कीमतों में 50 से 80% की कमी हुई है। भारत की उड़ान में अब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, फाइटर हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अब भारत की गणना विश्व के उन चुनिंदा देशों में है जो 4th जनरेशन फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स और एडवांस्ड वेपनरी बनाने में सक्षम हैं। अपने राष्ट्र बल को आत्मनिर्भर रूप से सशक्त बनाने की ओर देश तेजी से अग्रसर हो रहा है और डिफेंस कॉरिडोर बनाना उसी दिशा में एक अहम कदम है, जिसमें उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका है। कॉरिडोर बनाने के कुछ ही महीनों में एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो डेफ एक्सपो 2020 आयोजित कर विश्व के डिफेंस क्षेत्र को लखनऊ में होस्ट किया। उत्तर प्रदेश ने बड़ी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की पहल की है। उत्तर प्रदेश में मात्र 2 साल में लगभग 4000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित हुआ है। कानपुर में डॉर्नियर, अमेठी में AK-203 कलशनिकोव राइफल, लखनऊ में ब्रह्मोस और अलीगढ़ में 8 असॉल्ट राइफल्स, ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के उत्पादन की नींव रखी जा चुकी है। इसी कड़ी में अब बारी है वीरांगना लक्ष्मीबाई की इस पावन धरती की। अब झांसी भी देश के सैन्य बलों को सशक्त करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। अब झांसी में नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स अंकुरित होने लगे हैं। राष्ट्र के सैन्य बल को सशक्त करने के साथ साथ झांसी के निवासियों को रोजगार भी प्राप्त होगा तथा यहाँ के कारोबार में भी वृद्धि होगी। इन सब कदमों से भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है। नए भारत का उत्साह और प्रगति को देख दुनिया के अनेक देश अब हमारे साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। आने वाले वर्षों में यही संकल्प भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देशों की पंक्ति में गर्व से खड़ा करेगा और एक बेहतर, संतुलित और संयमित विश्व बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।
फिर से जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं, मैं सीमाओं का पहरा हूं, क्योंकि मैं नए भारत का चेहरा हूं। आज़ादी के तुरंत बाद 1947-48 में हम पर थोपे गए युद्ध से लेकर वर्तमान के बालाकोट ऑपरेशन तक देश का इतिहास हमारी सेनाओं की शौर्य गाथा से लबालब। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय के मार्ग पर चलते हुए देश के शूरवीरों ने हर मैदान फतेह किया। नाम नमक निशान के लिए, अपनी मिट्टी के लिए विजय या वीरगति को नई परिभाषा दी। स्वतंत्रता के बाद देश की अखंडता की रक्षा करते हुए 26,000 से अधिक सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुझे याद आती है वो पंक्तियां, तू कहां की माटी से आता है, तू कहां की माटी पाता है, तू कहां की माटी से आता है, तू कहां की माटी पाता है, मेरे देश का वीर सिपाही नाम अमर कर जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी विजन के परिणाम स्वरूप देश की राजधानी नई दिल्ली में नवनिर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक इन शहीदों की शौर्य गाथाओं को अजर अमर बनाने के साथ साथ हर नागरिक के मन में उच्च नैतिक मूल्यों को, राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना को और सशक्त बनाता है। हाल ही में यहां डिजिटल माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रावधान भी किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह कि नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थित डिजिटल स्क्रीन तथा अन्य सुविधाओं का रिमोट का बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से लोकार्पण करें। सीना तान के छीना, सीना तान के छीना है, क्योंकि गर्व से हमको जीना है। उनके हर कतरे के निशान, शहीद हुए जो मातृभूमि पर, उनके हर कतरे के निशान हैं यहाँ। तकरीबन 70 वर्षों तक आजादी के बाद शहीद हुए सैनिकों की याद में कोई राष्ट्रीय स्मारक न होने की कमी हमेशा देशवासियों को खलती रही। सैन्य बलों एवं समस्त देशवासियों की भावनाओं को साकार करने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया। 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय समर स्मारक हमारे प्रधानमंत्री जी के उस विजन को दर्शाता है जिसमें उन्होंने आजादी के बाद शहीद हुए सैनिकों की स्मृति को एक रूप प्रदान किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय समर स्मारक डिजिटल स्क्रीन और उन्नत तकनीकी सुविधाएं राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय समर स्मारक की पहुंच अब युवाओं और व्यापक जन समूह तक होगी। राष्ट्रीय समर स्मारक के प्रवेश द्वार से थोड़ा आगे बढ़ते ही दाईं और बाईं तरफ सुविधाजनक टच स्क्रीन लगी है। आउटडोर इंटरैक्टिव टच स्क्रीन और 2 विशाल एलईडी आउटडोर वॉल के माध्यम से वीरों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यहाँ आने वालों का मोबाइल फोन ऑडियो आधारित टूर गाइड का प्रयोग कर लोकेशन, मार्ग और इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय समर स्मारक के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑडियो विवरण के साथ 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। स्मारक में अंकित 26,275 शूरवीरों के बारे में जाना जा सकता है। 360 डिग्री व्यू, इस सुविधा से दुनिया के किसी भी कोने से राष्ट्रीय समर स्मारक के वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं। रानी झांसी की पवित्र कर्मभूमि से आज ये लोकार्पण देश के सैनिकों से ये वादा है कि उनका बलिदान हमारे मनमानस पर सदैव अंकित रहेगा। धन्यवाद श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री के प्रखर शीर्ष नेतृत्व में देश का सामूहिक पुरुषार्थ
आज पिस्तौल से लेकर तेजस लड़ाकू विमान के निर्माण तक आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं झुकने देंगे का संकल्प हथियारों के साथ साथ विचारों की आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व नमन कृतज्ञ राष्ट्र का उस वीरांगना के प्रति जिसने अपने खून से बलिदानों की इस पावन धरती पर राष्ट्र सर्वोपरि की अजर अजर अमर गौरव गाथा लिखी। जैसा कि माननीय CDS महोदय ने कहा, कल्पना कीजिए पीठ पर नन्हे दामोदर राव, दांतों में घोड़े की लगाम, दोनों हाथों में तलवार और सामने दुश्मनों का चक्रव्यूह। हर हर महादेव तथा जय भवानी के उद्घोष के बीच शत्रु दल पर प्रलय बनकर टूटने वाली वो रणचंडी। यकीन मानिए इस दुनिया में ऐसी कल्पना का गौरव केवल हम भारतवासियों को ही हासिल है, क्योंकि हमें उस पावन धरती पर पैदा होने का सौभाग्य मिला जहां जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियसी की पुरुषोत्तम परंपरा है। न डरो वारिसों जब जाए लड़ो निश्चय कर, अपनी जीत करो का रूहानी संदेश है। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे अनगिनत शूरवीरों का विजय नाथ है। देश के हर गली मोहल्ले में गूंजती खूब लड़ी मर्दानी की अमर शौर्य गाथाएं हैं। इन्हीं परंपराओं के साक्षी इस किले के पार्श्व में माननीय प्रधानमंत्री का गौरवशाली सानिध्य, अन्य गणमान्य विभूतियों की उपस्थिति। समय है राष्ट्र रक्षा समर्पण को और यादगार बनाते हुए प्रेजेंटेशन सेरेमनी का। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध कि वो देश में परिकल्पित एवं विकसित कुछ अभूतपूर्व सुरक्षा संयंत्रों के मॉडल्स तीनों सेनाओं को भेंट कर समारोह को और गौरवान्वित करें। सबसे पहले एयर चीफ मार्शल VR चौधरी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल ADCOM वायुसेना अध्यक्ष से मेरा निवेदन कि मंच पर आकर माननीय प्रधानमंत्री जी से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा डिजाइंड एवं डेवलप्ड किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मॉडल ग्रहण करें। May I also request Mr. R. Madhavan, Chairman and Managing Director, HAL, to please join for the honors. चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री को मॉडल सौंपते हुए और माननीय प्रधानमंत्री वायुसेना अध्यक्ष महोदय को मॉडल को सौंपते हुए 16,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम एक ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो 20 मिलीमीटर टरेट गन, 70 मिलीमीटर रॉकेट सिस्टम के साथ साथ एयर टू ग्राउंड एवं एयर टू एयर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों से सुसज्जित है। नभः स्पर्शम दीप्तम वाली भारतीय सेना जिसका अभिनंदन आज पूरी दुनिया कर रही है। इसके बाद एडमिरल करमवीर सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल ADCOM नौसेना अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध कि मंच पर आकर अति आधुनिक तकनीक से विकसित नए इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम शक्ति का मॉडल ग्रहण करें। मैं ऑल्सो रिक्वेस्ट डॉक्टर श्री सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी R&D एवं चेयरमैन DRDO, टू प्लीज हैंड ओवर द मॉडल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मॉडल नौसेना अध्यक्ष को भेंट करते हुए दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक एमिशन को पकड़ना नवल वॉरफेयर का एक बेहद अहम पहलू है। समुद्र का तूफान हो या दुश्मन का उफान, होठों पर भारत मां की जय और दिल में तिरंगे की शान। तटीय सीमाओं की हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर भारतीय नौसेना। एक बार पुनः जोरदार तालियां। ड्रोन्स यानी UAV, मानव रहित छोटा हवाई वाहन 21वीं सदी के रण क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ने की तैयारी में। लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। उप थल सेना अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध कि मंच पर आकर माननीय प्रधानमंत्री से ड्रोन के 2 मॉडल ग्रहण करें। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट श्री स्मिथ शाह, डायरेक्टर ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, टू काइंडली हैंड ओवर 2 मॉडल्स ऑफ these drones to the Honorable Prime Minister. पहला मॉडल दुश्मन के इलाके में चुपचाप घुसकर उसकी अहम खुफिया जानकारी देने में सक्षम। दूसरा मॉडल मुश्किल इलाके में तैनात सैनिकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में सक्षम। भारतीय सेना के साथ साथ कई स्टार्टअप तथा MSME के तालमेल एवं समन्वय का परिणाम
ये ड्रोन सेनाओं के सशक्तिकरण में नए युग का आगाज करते हुए गलवान से रेगिस्तान तक हर दुश्मन की हर हिमाकत को उसकी शिकस्त में बदलने के लिए तैयार हर भारतीय सैनिक, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हृदय से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद कर्नल जिंदल। निस्संदेह भारतीय सशस्त्र बल आधुनिकीकरण के सही मार्ग पर अग्रसर है। हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किया जा रहा निवेश शत्रु सेनाओं के हौसले पस्त कर रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने में प्रयासरत है। देवियों सज्जनों, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, जो इस पर्व के प्रणेता भी हैं, इस वक्त हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र एवं सादर निवेदन करता हूं कि वे अपने प्रेरक अंदाज में अपने विचार प्रस्तुत करें। झांसी में विगत 3 दिनों से संपन्न हो रहे राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जिनकी सोच, जिनकी काल्पनिक क्षमता का परिणाम है, ऐसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, हमारे राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री भानु प्रताप जी वर्मा, यहाँ क्षेत्रीय सांसद श्री अनुराग जी शर्मा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, नेवल चीफ एडमिरल करमवीर सिंह और चीफ एयर मार्शल मिस्टर A.B. चौधरी, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार और यहाँ मौजूद सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस कार्यक्रम में झांसी पधारने के लिए अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा भी मिली है। आज गुरु नानक जयंती का पर्व है। गुरु नानक देव जी ने समाज में सबकी भलाई के साथ साथ आडंबर, अंधविश्वासों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। उन्होंने महिला पुरुष के बीच के भेदभाव को मिटाने की भी सीख दी और गुरु नानक जी के इस प्रकार पर मैं एक बार आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई भी देता हूँ। यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज पूरे देश में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वह अमर सेनानी हैं जिनकी वीरता और बलिदान की कहानियां पूरे देश में केवल सुनी ही नहीं जाती हैं बल्कि सुनाई भी जाती हैं। साथियों, झांसी में इस आयोजन के पीछे रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा भी कायम है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कई पंक्तियां जिनसे आप परिचित होंगे, एक पंक्ति की मैं जानकारी यहाँ देना चाहता हूँ। अभी उम्र केवल 23 की थी, अभी उम्र केवल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी। मैं प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस 3 दिवसीय पर्व के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ डिफेंस, PSUs और तीनों सेनाओं द्वारा विभिन्न डिफेंस इक्विपमेंट की प्रदर्शनी एवं भारतीय वायुसेना के जाबाजों द्वारा किए गए एयर शो जैसे भी कई आयोजन यहाँ किए गए और यह आयोजन राष्ट्र रक्षा में नारी शक्ति की भूमिका का परिचायक होने के साथ साथ हमारे देश के निर्माण में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान को भी प्रदर्शित करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके ही मार्गदर्शन में हम राष्ट्र रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, महिला सशक्तिकरण की दिशा में
रक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक निर्णय किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में छात्राओं को प्रवेश देना प्रारंभ किया जाएगा और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस पर कार्य प्रारंभ हो गया है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारी सैन्य शक्ति में महिला शक्ति की भागीदारी बढ़े। इसके लिए अब एनडीए में भी महिलाओं की भर्ती आरंभ करने का एक बड़ा कदम उठाया गया है। महिलाओं को सेना में अब परमानेंट कमीशन भी दिया जा रहा है। इन निर्णयों से न केवल सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथियों, रक्षा संकल्प को मजबूती देने वाले कई काम शुरू किए जा रहे हैं, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। डीआरडीओ की उत्तर प्रदेश में 2 प्रयोगशालाएं पहले से ही मौजूद हैं। अब एक रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव है और साथ ही डीआरडीओ द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप को भी बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण बन सके। अब ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के उत्पादन के लिए भी उत्तर प्रदेश को चुना गया है मेरे बहनों भाइयों। और इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार मिशन मोड में काम कर रहा है। एक समय देश में 65 से 70% रक्षा सामग्री बाहर से आयात हो रही थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और हम 65% का सामान भारत से ही खरीद रहे हैं। यह बदलाव भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। एक समय वह भी था जब भारत की दुनिया भर में गिनती सबसे बड़े रक्षा सामानों के आयातक देश के रूप में होती थी। अब भारत की गिनती दुनिया के निर्यातकों में होने लगी है और अब भारत लगभग 70 देशों में रक्षा उपकरण और सामान निर्यात कर रहा है। यह नए भारत की नई और बदलती हुई तस्वीर है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने 2024-25 तक $5 बिलियन यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। हम इस लक्ष्य को भी हासिल करके रहेंगे, मैं यह प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी मौजूदगी में यह विश्वास देश की जनता को दिलाना चाहता हूं कि वह दिन जल्द आएगा जब देश की रक्षा जरूरतों का 90% सामान मेड इन इंडिया होगा और इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए देश की रक्षा के प्रति अटूट संकल्प को पुनः व्यक्त करते हुए और पुनः आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए। साथियों, वैश्विक महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभिकल्पित विकास के विजन को रक्षा मंत्रालय ने पूरी प्रतिबद्धता से अमल में लाने का प्रयास किया है। रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भरता के विजन, मेड इन इंडिया की संकल्पना, आपदा को अवसर में बदलने की सोच और लोकल से ग्लोबल की आकांक्षा का कायल है और दिन रात एक करते हुए उस मुहिम को अपने दल बल के साथ पूरा करने में जुटा हुआ है। आज देश के महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षा कॉरिडोरों की स्थापना उसी प्रेरणा और प्रयास का परिणाम है। यह परियोजना भारत के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक अहम पहल है। देवी और सज्जनों, इस संबंध में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना से संबंधित प्रस्तुत है आपके सामने एक फिल्म, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये शब्द आज भी हर भारतवासी के दिल में देशभक्ति का जज्बा भर देते हैं और हम सबको आजादी के उस दौर की याद दिलाते हैं
जब झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस से अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था, तब से भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ झांसी का भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उसी झांसी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में इस बार रक्षा क्षेत्र में नई पहचान मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक 4000 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी व चित्रकूट को जोड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए विश्व स्तरीय रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL अपनी नई इकाई स्थापित करने जा रही है, जहां कई प्रकार के आधुनिक व उत्कृष्ट रक्षा उपकरण, अस्त्र प्रणालियां तैयार की जाएंगी, जिनमें विशेष तौर पर शामिल हैं टैंक रोधी संचालित प्रक्षेपास्त्र, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और पानी में मार करने वाले अस्त्र। साथ ही यहां मिसाइल संबंधी प्रपल्शन सिस्टम भी बनाए जाएंगे, जिनका उपयोग सभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आने वाले समय में बनाई जाने वाली मिसाइलों में किया जाएगा। इस इकाई के बन जाने से देश की रक्षा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। यहां MSME स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ आवासीय टाउनशिप भी स्थापित होने से जहां एक ओर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलने से हुनर को पहचान मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से झांसी की तस्वीर बदल जाएगी। आज उत्तर प्रदेश भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि वो अपने कर कमलों द्वारा एक प्लाक यानी लेख पट्टिका का अनावरण कर 400 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत डायनामिक्स लिमिटेड की प्रोपल्शन सिस्टम निर्माण सुविधा का बटन दबाकर शिलान्यास करें। इसके द्वारा प्रधानमंत्री जी, आपके आत्मनिर्भर भारत के प्रगतिशील विजन को नया बल मिलेगा और साथ ही इस परियोजना से झांसी का रुतबा और ऊंचा होगा और हमारी झांसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त होगी। और अब इसी मंच से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झांसी और बुंदेलखंड के विकास तथा प्रगति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आज पूरा विश्व मानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जनक और सूत्रधार हैं। समस्त विश्व के लोगों को मोदी जी ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा का अनुपम विचार दिया है। उन्होंने ही विश्व को वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का मंत्र देकर सभी देशों को सौर ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता के प्रति आश्वस्त किया है। हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करेंगे कि वे अपने कर कमलों से आज गौराथा में बनने वाले 600 मेगावाट क्षमता वाले सोलार प्लांट की एक लेख पट्टिका का अनावरण कर आधारशिला रखने का शुभ कार्य करें। देवी और सज्जनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झांसी को एक और प्रेरक तोहफा देने वाले हैं। जी हां, भारत रत्न से विभूषित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश भर के जन जन और कण कण में आज भी मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। हर जन का ये मानना है कि अटल जी के विचारों की महक से देश में एकता और सद्भावना का संदेश घर घर में पहुंचता रहता है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वे झांसी में सुरुचिपूर्ण तरीके से नव विकसित अटल एकता पार्क स्थानीय जनता को समर्पित करने के मुबारक काम को अंजाम दें। बटन दबाकर। प्राची में अरुणिम की देख रेख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। महान श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये शब्द आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। द अटल एकता पार्क राष्ट्र को समर्पित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आइए हम सब मिलकर उन्हीं की कल्पना का एक नया दिया जलाएं और इस देश को एक नई सवेरे की ओर ले जाएं। देवी और सज्जनों, कई सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और इसे विश्व के मानचित्र पर दर्शाने का सपना देख रहे हैं हमारे अपने कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको अपने प्रेरणात्मक शब्दों से संबोधित करें। श्री योगी आदित्यनाथ जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री अजय भट्ट जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप वर्मा जी, माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, आज के इस राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, रक्षा सेनाओं के सभी अध्यक्षगण, रक्षा सचिव समेत सभी उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव, मैं वीर और वीरांगनाओं की इस पावन धरती झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान की इस पावन धरती पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के आज के समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पूरा देश इस देश के प्रथम स्वतंत्र समर की अमर सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं पावन जयंती के कार्यक्रम को उनकी शौर्य और गाथा के साथ स्मरण कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में विदेशी हुकूमत की चोलें हिलाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम को, शौर्य गाथा को वह हर भारतवासी बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ स्मरण करता है। जिसे माता जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति जिसके मन में थोड़ा भी अनुराग है और मातृभूमि के प्रति रानी लक्ष्मीबाई के उस बलिदान को सदैव स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। और उनका अमर वाक्य हम सब के लिए एक मंत्र बन गया, जिन्होंने इसी झांसी में 1857 के पूर्व विदेशी हुकूमत को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। यह आज भी हम सबको माता और मातृभूमि के प्रति एक नया समर्पण का भाव हम सब के प्रति हम सबको व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। आज जब हम 193वीं पावन जयंती पर रानी लक्ष्मीबाई के इस पावन कार्यक्रम में हम यहाँ पर
रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में इस आयोजन में विभिन्न परियोजनाओं के साथ यहां पर सम्मिलित हुए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि वे स्वयं भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के अंदर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो 2 डिफेंस कॉरिडोर स्वीकृत किए थे उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया और आज उत्तर प्रदेश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर इस दिशा में तेजी के साथ न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बल्कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि झांसी में 1034 हेक्टेयर का लैंड बैंक हमारे पास मौजूद है और जिसमें प्रस्तावित निवेश अब तक 603 करोड़ रुपए का हमें प्राप्त हुआ है। चित्रकूट में 101 हेक्टेयर का, कानपुर में 184 हेक्टेयर, अलीगढ़ में 81 हेक्टेयर और लखनऊ में 80 हेक्टेयर अब तक लैंड बैंक के रूप में हम लोगों ने अपने पास सुरक्षित रखा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर को डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर 183 हेक्टेयर भूमि हम उत्तर प्रदेश शासन ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को प्रदान कर दी है। उसकी सभी प्रकार की लीज डीड की रजिस्ट्री की सभी प्रकार की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है और यह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ने का होगा। आज का दिवस हम सब के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और पूरी दुनिया को प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए जिस एक नए अभियान को आगे बढ़ाया है, जिसका वो स्वयं नेतृत्व पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने उनके नेतृत्व में 2017 से अब तक 1440 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट अब तक प्रदेश में कमीशन किए हैं और आज यहां पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड की भागीदारी से 600 मेगावाट के एक नए सोलर पावर प्लांट का यहां पर आधारशिला रखी है, जो इसी झांसी जनपद में स्थापित होगा। यहां पर इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही 2850 एकड़ भूमि इसके लिए उन्हें आवंटित की है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इसमें प्रस्तावित है और लगभग 6000 से अधिक रोजगार की संभावनाएं यहां पर इसके माध्यम से प्राप्त होंगी। इसके साथ ही यहां पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अटल एकता पार्क का भी लोकार्पण किया है। सरदेव अटल जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व उन्होंने देश की संसद में किया। भारत के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करता हुआ यह अटल एकता पार्क आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट सिटी मिशन का वह पार्ट है, जिसमें हमारे शहर भी अब केवल सामान्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त न हो बल्कि अपने आप में स्मार्ट बने और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए न केवल वहां पर अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो बल्कि वहां पर लोगों को ये बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त हों, जिनके लिए शहरी क्षेत्र में एक सामान्य नागरिक आकर के एक विश्वास के साथ आता है। और आज उत्तर प्रदेश 17 ऐसी सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य कर रहा है। उसी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अटल एकता पार्क
का लोकार्पण का कार्यक्रम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झांसी में भी यहां पर किया है। बुंदेलखंड के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस बात को लेकर के, एक तरफ बुंदेलखंड के एक छोर पे प्रधानमंत्री जी ने आज जल जीवन मिशन से जुड़े हुए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़े हुए बड़े बड़े परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, राष्ट्र को उन्हें समर्पित किया है। और आज दूसरी ओर रक्षा सेना को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जय जवान जय किसान के इस अभियान को साकार करने और हर काम देश के नाम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज स्वयं बुंदेलखंड की धरती पर आकर के उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर, आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के इस आयोजन पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इस त्याग और बलिदान की इस भूमि पर, उनके 193वीं पावन जयंती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने संबोधन में राज्य में जारी विकास परियोजनाओं का विस्तार से विवरण देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर आप 13 घंटे काम करेंगे तो मैं 14 घंटे काम करूंगा। अगर आप 14 घंटे काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। ये महान शब्द हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। हम सब उस देश के वासी हैं जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप भारत को सुनहरे, सुरक्षित और शक्तिशाली भविष्य की ओर अभूतपूर्व गति से ले जा रहे हैं। देवियों और सज्जनों, मैं जानती हूं कि आप सब बेसब्री से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इंतजार के पल अब समाप्त हुए। प्रगतिशील भारतवर्ष के उत्कर्ष के लिए भारत सरकार के प्रयासों में भागीदार बनने की अपील करते हुए समस्त भारतवासियों को अब संबोधित करेंगे भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जौन धरती पे हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने आजादी के लाने अपना सबई नौछावर कर दो, वह धरती के बासियन को हमाओ हाथ जोड़ के प्रणाम पहुंचे। झांसी ने तो आजादी की अलग जगाई हती। इतई की माटी के कन कन में वीरता और देश प्रेम बसो है। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को हमाओ कोटि कोटि नमन। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, देश का रक्षा मंत्री और इस प्रदेश के यशस्वी प्रतिनिधि और मेरे बहुत वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, सभ्य अन्य
अधिकारीगण, एनसीसी कैडेट्स और एल्यूमनी और उपस्थित साथियों, झांसी की इस शौर्य भूमि पर कदम पड़ते ही ऐसा कौन होगा जिसके शरीर में बिजली न दौड़ जाती हो? ऐसा कौन होगा यहां जिसके कानों में मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी कि गर्जना न गूंजने लगती हो? ऐसा कौन होगा जिसे यहां के रजकणों से लेकर आकाश के बृहत शून्य में साक्षात रणचंडी के दिव्य दर्शन न होते हो? और आज तो शौर्य पराक्रम की पराकाष्ठा हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म जयंती भी है। आज झांसी की ये धरती आजादी के भव्य अमृत महोत्सव की साक्षी बन रही है और आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है। ऐसे में आज झांसी में आकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इसकी अभिव्यक्ति शब्दों में आसान नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूं राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार मेरी झांसी का जो मनोभाव मेरे मन में उमड़ रहा है, वो बुंदेलखंड के जन जन की ऊर्जा है, उनकी प्रेरणा है। मैं इस जागरूक चेतना को महसूस भी कर रहा हूं और झांसी को बोलते हुए सुन भी रहा हूं। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है। मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। मेरे ऊपर मां भारती का अनंत आशीर्वाद है कि क्रांतिकारियों के इस काशी झांसी का अथाह प्यार मुझे हमेशा मिला है। और यह भी मेरा सौभाग्य है कि मैं झांसी की रानी की जन्मस्थली काशी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे काशी की सेवा का अवसर मिला है, इसलिए इस धरती पर आकर मुझे एक विशेष कृतज्ञता की अनुभूति होती है, एक विशेष अपनापन लगता है। किसी कृतज्ञ भाव से मैं झांसी को नमन करता हूं। वीर वीरांगनाओं की धरती बुंदेलखंड को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। साथियों, आज गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ देव दीपावली भी है। मैं गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए सभी देशवासियों के इन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देव दीपावली पर काशी एक अद्भुत दैवीय प्रकाश में सजती है। हमारे शहीदों के लिए गंगा के घाटों पर दिए जलाते जाते हैं। पिछली बार मैं देव दीपावली पर काशी में ही था और आज राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर झांसी में हूं। मैं झांसी की धरती से
अपनी काशी के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये धरती रानी लक्ष्मीबाई की अभिन्न सहयोगी रही। वीरांगना जलकारी बाई की वीरता और सैन्य कौशल की भी साक्षी रही है। मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की उस अमर वीरांगना के चरणों में भी आदरपूर्वक नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं नमन करता हूं इस धरती से भारतीय शौर्य और संस्कृति की अमर गाथाएं लिखने वाले चंदेलों, बुंदेलों को, जिन्होंने भारत की वीरता का लोहा मनवाया। मैं नमन करता हूं बुंदेलखंड के गौरव उन वीर अहला उदल को, जो आज भी मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान के प्रतीक है। ऐसे कितने ही अमर सेनानी, महान क्रांतिकारी, युग नायक और युग नायिकाएं रही हैं, जिनका इस झांसी से विशेष रिश्ता रहा है, जिन्होंने यहां से प्रेरणा पाई है। मैं उन सभी महान विभूतियों को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में उनके साथ लड़ने वाले, बलिदान देने वाले आप सब लोगों के ही तो पूर्वज थे। इस धरती की आप सब संतानों के माध्यम से मैं उन बलिदानियों को भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज मैं झांसी के एक और सपूत मेजर ध्यानचंद जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने भारत के खेल जगत को दुनिया में पहचान दी। अभी कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने देश के खेल रत्न अवार्ड्स को मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। झांसी के बेटे का, झांसी का सम्मान हम सभी को गौरवान्वित करता है। साथियों, यहां आने से पहले मैं महोबा में था, जहां बुंदेलखंड की जल समस्या के समाधान के लिए पानी से जुड़ी योजनाओं और दूसरी विकास परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मुझे मिला। और अब झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का हिस्सा बन रहा हूं। ये पर्व आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इससे यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान मिलेगी। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। साथियों, इसके साथ ही आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं का संरक्षित किए गए हैं। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है।
साथियों, आज एक और हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है, तो साथ ही भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। ये 100 सैनिक स्कूल जिनकी शुरुआत होगी, ये आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन की भी शुरुआत की है। 33 सैनिक स्कूलों में इस सत्र से गर्ल्स स्टूडेंट्स की एडमिशन शुरू भी हो गई है। यानी अब सैनिक स्कूलों से रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां भी निकलेगी, जो देश की रक्षा, सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएगी। इन सब प्रयासों के साथ ही एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन और एनसीसी कैडेट्स के लिए नेशनल प्रोग्राम ऑफ सिमुलेशन ट्रेनिंग ये राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की भावना को साकार करेंगे। और मुझे खुशी है कि आज रक्षा मंत्रालय ने, एनसीसी ने मुझे मेरे बचपन की यादें याद दिला दी। मुझे फिर से एक बार एनसीसी का वो रुबाब, एनसीसी का एक मिजाज उससे जोड़ दिया। मैं भी देश भर में उन सब से आग्रह करूंगा कि आप भी अगर कभी एनसीसी के कैडेट के रूप में रहे हैं तो आप जरूर इस एलुमनाई एसोसिएशन के हिस्से बनिए। और आओ, हम सभी पुराने एनसीसी कैडेट देश के लिए आज जहां हो, जैसा भी काम करते हो, कुछ न कुछ देश के लिए करने का संकल्प करें, मिलकर करें। जिस एनसीसी ने हमें शिस्त सिखाई, जिस एनसीसी ने हमें साहस सिखाया, जिस एनसीसी ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए जीने का सबक सिखाया, ऐसे संस्कारों को अब देश के लिए हम भी उजागर करें। एनसीसी के कैडेट्स के जज्बे का, उनके समर्पण का लाभ अब देश के बॉर्डर और कोस्टल एरियाज को भी प्रभावी तरीके से मिलेगा। आज पहला एनसीसी एलुमनाई सदस्यता कार्ड मुझे देने के लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। मेरे लिए ये गर्व का विषय है। साथियों, एक और बड़ी अहम शुरुआत आज झांसी की बलिदानी मिट्टी से हो रही है। आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर डिजिटल कियोस्क को भी लॉन्च किया जा रहा है। अब सभी देशवासी हमारे शहीदों को, वॉर हीरोज को मोबाइल ऐप के जरिए अपनी श्रद्धांजलि दे सकेंगे। पूरे देश के साथ एक प्लेटफॉर्म भावात्मक रूप से जुड़ सकेंगे। इन सब के साथ ही आज यूपी सरकार द्वारा अटल एकता पार्क और 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, पावर पार्क की भी, यह भी झांसी को समर्पित किया गया है। आज जब दुनिया प्रदूषण और पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रही है, तब सोलर पावर पार्क जैसी उपलब्धियां देश और प्रदेश के दूरदर्शी विजन का उदाहरण है। मैं विकास की इन उपलब्धियों के लिए, अनवरत चल रही कार्य योजनाओं के लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, मेरे पीछे ऐतिहासिक झांसी का किला इस बात का जीता जागता गवाह है कि भारत कभी कोई लड़ाई, शौर्य
और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर अंग्रेजों के बराबर संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो देश की आजादी का इतिहास शायद कुछ और होता। जब हमें आजादी मिली तब हमारे पास अवसर था, अनुभव भी था। देश को सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यही आजादी के अमृत काल में देश का संकल्प है, देश का लक्ष्य है। और बुंदेलखंड में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। जो बुंदेलखंड कभी भारत के शौर्य और साहस के लिए जाना जाता था, उसकी पहचान अब भारत के सामरिक सामर्थ्य के प्रमुख केंद्र के तौर पर भी होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस क्षेत्र के विकास के लिए का एक्सप्रेस बनेगा, ये मेरे पर विश्वास कीजिए। आज यहां मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक कंपनी का शिलान्यास हो रहा है। आने वाले समय में ऐसी कई और कंपनियां भी आएगी। साथियों, लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार और एक प्रकार से हमारी क्या पहचान बन गई? हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी। लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम देश के डिफेंस सेक्टर से देश के प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी जोड़ रहे हैं। नए स्टार्टअप्स को अभी क्षेत्र में भी अपना कमाल दिखाने का मौका मिल रहा है। और इन सब के यूपी डिफेंस कॉरिडोर का झांसी नोड बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इसका मतलब है यहां के एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए, छोटे उद्योगों के लिए नई संभावनाएं तैयार होगी। यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और इसका मतलब है जो क्षेत्र कुछ साल पहले तक गलत नीतियों के कारण पलायन से पीड़ित था, वो अब नई संभावनाओं के कारण निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। देश विदेश से लोग बुंदेलखंड आएंगे। बुंदेलखंड की जिस धरती को कभी कम बारिश और सूखे की वजह से बंजर माने जाने लगा था, वहां आज प्रगति के बीज अंकुरित हो रहे हैं। साथियों, देश ने यह भी तय किया है कि रक्षा बजट से जो हथियार उपकरणों की खरीदी होगी, उसमें बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया उपकरणों पर ही खर्च होगा। रक्षा मंत्रालय ने 200 से ज्यादा ऐसे उपकरणों की लिस्ट भी जारी की है जो अब देश में ही से ही खरीदे जाएंगे, बाहर से ला ही नहीं सकते हो। उन्हें विदेश से खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। साथियों, हमारे आदर्श रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, अवंतीबाई, उदा देवी जैसी अनेक वीरांगनाएं हैं। हमारे आदर्श
लौह पुरुष सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसी महान आत्माएं हैं। इसलिए आज अमृत महोत्सव में हमें एक साथ आना है, एक साथ आकर देश की एकता अखंडता के लिए, हम सबकी एकता के लिए संकल्प लेना है। हमें विकास और प्रगति के लिए संकल्प लेना है। जैसे अमृत महोत्सव में आज रानी लक्ष्मीबाई को देश इतने भव्य तरीके से याद कर रहा है, ऐसे ही बुंदेलखंड के अनेकानेक बेटे और बेटियां हैं। मैं यहां के युवाओं से आह्वान करूंगा, अमृत महोत्सव में इन बलिदानियों के इतिहास को, इस धरती के प्रताप को देश और दुनिया के सामने लाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सिर्फ मिलकर इस अमर वीर भूमि को उसका गौरव लौटाएंगे। और मुझे खुशी है कि संसद में मेरे साथी भाई अनुराग जी लगातार ऐसे विषयों पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस राष्ट्र रक्षा, इस साप्ताहिक पर्व को जिस प्रकार से उन्होंने स्थानीय लोगों को सक्रिय किया, सरकार और लोग मिलकर के कैसा अद्भुत काम कर सकते हैं, वो हमारे सांसद और उनके पूरे सभी साथियों ने दिखा दिया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस भव्य समारोह को सफल बनाने के लिए आदरणीय राजनाथ जी की नेतृत्व में पूरी टीम ने जिस कल्पकता के साथ इस स्थान का चयन करना, डिफेंस कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्र रक्षा के लिए अनेक विध आयुधों को तैयार करने की भूमि बने, इसके लिए आज का ये इवेंट बहुत लंबे कालखंड तक प्रभाव पैदा करने वाला है। इसलिए राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी है। योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ताकत दी है, नई गति दी है। लेकिन डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड की इस धरती को शौर्य और सामर्थ्य के लिए फिर एक बार राष्ट्र रक्षा की उपजाऊ भूमि के लिए तैयार करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दूरदृष्टि काम है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। साथियों, आज के इस पवित्र त्योहारों के पल पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi concluding his address, reinforcing once again the nation's tribute to the bravery and valor of Rani Lakshmibai on her birth anniversary and stressing the importance of self-sacrifice and Atmanirbharta. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के समापन के पश्चात आयोजन स्थल से प्रस्थान कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समारोह यहीं संपन्न हो रहा है। अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप उत्तर प्रदेश के झांसी से राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कार्यक्रम के समापन का सीधा प्रसारण देख रहे थे। पूर्वांचल के बाद अब बारी बुंदेलखंड की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर रक्षा क्षेत्र की कई पहलों का शुभारंभ किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने औपचारिक रूप से स्वदेश में डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन और नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट सशस्त्र बल सेवा प्रमुखों को सौंपे।
पीएम मोदी ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए प्रणोदन प्रणाली का उत्पादन करने के लिए यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड पर 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झांसी के कण कण में देशभक्ति रची बसी है। पीएम ने कहा कि झांसी वीर क्रांतिकारियों की काशी है। उन्होंने कहा कि यह धरती वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की है। मैं उन्हें नमन करता हूं। मैं बुंदेलखंड के गौरव को नमन करता हूं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद को भी याद किया। उन्होंने कहा कि झांसी के बेटे का सम्मान हमें गौरवान्वित करता है। एनसीसी एल्यूमिनाई कार्ड देने के लिए पीएम ने सभी का आभार व्यक्त किया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा